Bismillahirrahmanirrahim. Dear 8th class students, today uh, we shall be dealing with a poem. The poem that is entitling Meeting Poets. तो यही पोइम आज हम पढ़ेंगे. तो इससे पहले हम ऑथर के बारे में थोड़ा जानेंगे. इवनिस डिसोजा इस पोइम की ऑथर हैं. तो she was an English language poet and she has published 4 volumes of poetry, 2 novels and edited several anthologies of poems. तो ये उसकी जो तख्लीक हैं, 4 वॉल्यूम उसने पोइट्री के, 2 नॉवेल्स के और कुछ एंथोलॉजीज मीन्स सम ऑफ दोज मजमूआ जिसको हम बोलते हैं उर्दू में शायरी का. तो ऐसे इसका मजमूआ भी उसने शाया किया है. पोइट्री में इसकी फिक्स हैं: वुमेन इन डच पेंटिंग, वेज ऑफ बिलोंगिंग, सेलेक्टेड एंड न्यू पोम्स एंड नेक्स्ट ऑफ स्कल्स एट्सट्रा. और ये नॉवेल्स में भी उसने डेंजर लुक पेंगुइन 2001 में शाया हुई है. देव एंड सिमरन ये भी एक नॉवल है, पेंगुइन 2003 में शाया हुई. तो इस पोइम में सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इसका सेंट्रल आइडिया है. तो द सेंट्रल आइडिया पोइम is that poet is better assessed through their poems rather than personality. पर्सनैलिटी डिफरेंट दिख सकती है, लेकिन एक्चुअली हमें एसेस करना चाहिए पोइट को उनके पोइम्स के थ्रू, या जो वो लिखते हैं तख्लीक के थ्रू. At times the dress, hair or manner of speech of poet may confuse or create doubt in our minds as to their worth and poets, but it's always better to aside the looks and go through their poems. तो कहने का मतलब ये है कि हमें उनके ड्रेस, हेयर स्टाइल या उनका मैनर ऑफ जो स्पीच होता है, कहने का जो तरीका होता है, तो वो हमें कभी कभार कंफ्यूज करता है और हमारे जहन में वो डाउट्स क्रिएट करता है. तो इस सारी चीज़ से हम कभी कभार डाउटफुल हो जाते हैं, जो कि असली पर्सनालिटी एक पोइट की नहीं होती है, क्योंकि वो पोइट वर्थ हो सकता है. तो इसलिए हमें सबसे बेहतर तरीका है किसी को परखने का. सो वी शुड लुक, वी शुड असेस देम थ्रू देयर पोइम्स. तो पोइम के थ्रू हम उनको असेस कर सकते हैं. तो जो उनकी तख्लीक हैं उनसे हम सो जजिंग विद रेफरेंस टू अनदर इज एन समटाइम्स इट इज़ एन एरर. कभी कभार हमें इसमें गलती हो जाती है. हम जब बाहरी किसी इंसान को देखते हैं, पोइट को देखते हैं, राइटर को देखते हैं, तो हम कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वैसा नहीं हो सकता है, या उसकी बातों से. बेहतर तरीका है कि उनके जो तख्लीकात हैं, जो उनकी पोम्स हैं, उनके थ्रू हम उनको जानने की कोशिश करेंगे. ठीक. तो समरी में हम देखेंगे. सो ब्रीफ थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पे पढ़ के सुनाऊंगा. ये मीटिंग पोट्स आई एम डिसकंसर्टेड समटाइम्स by the color of their socks. This meeting poets I am disconcerted sometimes by the color of their socks, the suspicion of a wig, the wasp in the vice, and an air sometimes of dankness. So the poem Meeting Poets is it's jotted down by Eunice D'Souza. In this poem, the poetess encourages the readers to pass judgment on the poets by their poetry rather than by their appearances. According to uh, poets are cumbersome people because they are shabby and are not immaculate about their dress and personality. The color of their socks and the way they wear a wig is awkward sometimes. They speak with irritation or bitterness. They have an air of unpleasantness about them, yet their poems are beautiful pieces of art. Now that best
Best to meet in poems, cool speckled shells in which one hears a sad but distant sea. So, in these last lines, the poet advises that we must judge the writer by their works of art because their poetry always appears beautiful. And therefore, unlike them, poetry is different from appearance of the poets and distant from them like the seashells from the sea. But one could hear the sea in the same shell, right? So, मेन एट्रैक्शन द पॉइंट में अगर हम देखेंगे द पोइट इज कन्फ्यूज्ड बिकॉज यहाँ पे देखेंगे हम द पोइट इज वेरी मच कन्फ्यूज्ड एंड disconcerted. He is confused by the appearance of the writers. The best way to know the poet is to know their work of art. She compares them with seashells in which one could hear the sea. Its bitterness in the speech, uh, its bitterness in their speech sometimes the poet talks of. Writers usually come up with outspoken comments which are too harsh to hear, right? So we should not look them through that way. तो यहाँ पे आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत हम इसको अपने तरीके से पढ़ेंगे. हाँ, तो मीटिंग पोइट्स आई एम कंफ्यूज्ड, द पोइट इज़ वेरी मच कंफ्यूज्ड. तो शायर कई बार सोच में पड़ जाता है, परेशान हो जाता है. मैं कहता है कि मैं कभी बहुत बार परेशान हो जाता हूँ. बाय द कलर ऑफ देयर सॉक्स, जुराबों के रंग से, यानी अनोखे तरह के जुराब पहने हुए, एक कलर का दूसरे कलर का, कभी कभार टेढ़ा मेढ़ा ऐसा जुराब पहना है कि बहुत बार जो शायरा है वो कंफ्यूज हो जाती है, परेशान हो जाती है. द सस्पिशियस ऑफ ए विग, बालों के नकली विग होने के शक से. तो उनके बाल भी खुरदुरे होते हैं. हाँ, तो बालों से उनकी वर्थ का पता नहीं चलता है. कभी कभार बाल भी बिखरे हुए हैं, धोए नहीं हैं, तो शक में पड़ जाते. पोइट कहते हैं मैं बहुत बार शक में पड़ जाता हूँ कि उनकी जो विग है वो नकली बाल है, या उनकी आवाज़ की कड़वाहट से. द वास्प इन द वॉइस, वास्प वो जो वास्प बी जो होती है या तो तोलर माना वास्प, उसकी जो स्टिंग होती है दैट्स वेरी मच, वो क्या होती है, दर्द भरी होती है. वो मतलब वो बिटरनेस उसमें होता है. मतलब सह छु वारिया इंसानस क्या ये आसान छु ये तमिस सो टोफ आसान सह छु बड़ पेन देवान ना. इथे पट पोइट्स युजन आस ये कुन सात इमसन्स आवाज में से ऐसे सो कड़वाहट दे. ठीक, सो कड़वाहट युजन आसान छु इंसानस कुन सात परेशान करान कि शायद युस दिन ये कथ करान छु ये मा आस युथुई. मगर हाँ, तो and an air sometimes of dankness, और कई बार गीलेपन के एहसास से. जैसे हाँ, तो आसपास का जो उसका माहौल, ठीक, एंड एन एयर समटाइम्स ऑफ dankness, जो गीलापन के उस एहसास से हमें उसकी असली वर्थ का अंदाज़ा नहीं चल सकता उसकी. हाँ, तो यहाँ dankness का मतलब होता है अनप्लीजेंटनेस. कभी कभार जो मतलब इंसान नाखुश हो जाता है, तो उनका माहौल ऐसा होता है कि इंसान खुश नहीं होता, नाखुश होता है, और इसी चीज़ को लेकर उनके बारे में गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं. एहसास से उनके बालों के कलर, बालों के जो वो जैसे बिखरे बाल होते हैं, उनके पहनने के ढंग से, उनके बात करने की जो कड़वाहट से, या उनके जो आसपास का जो माहौल है उससे इंसान कभी कभार कंफ्यूज होता है. शायरा जो है वो कंफ्यूज हो जाती है. बेस्ट मीट इन पोइम्स, इसलिए बेहतर है मिलना इन नज़मों में. कूल स्पैकल्ड शेल्स, यहाँ पे इसको कंपेयर किया है वो जो कूल स्पैकल्ड शेल. यहाँ पे हम देखेंगे बेस्ट मीट इन पोइम्स. यहाँ पे जो शेल हैं इस पर आप देख रहे हैं कि बड़े खूबसूरत ये दाग जैसे हैं, स्पैकल्ड है ना. तो स्पैकल्ड का मतलब होता है जो दागदार वो शेल्स होते हैं. बेस्ट टू मीट इन पोम्स, कूल स्पैकल्ड शेल्स, तो बेहतर है इन शायरों से मिलना नज़मों में. वो जो ठंडे दागदार जो खोल होते हैं ना, वो शेल्स होते हैं. इन विच वन हियर्स अ सैड बट डिस्टिंक्ट सी. सो इंसान उनके अंदर यानी उनको देखकर इंसान ये अगरचे वो जो शेल्स होते हैं वो समंदर से काफ़ी दूर होते हैं, लेकिन हमें वो
बड़े अच्छे लगते हैं, वो खूबसूरत होते हैं। तो इसी तरह जो पोइट होते हैं, हमें बेहतर है कि हम उनसे मुलाकात करें, हम उनसे मिलें, हाँ? उनकी नज़मों के थ्रू ही, वो जो ठंडे दागदार खोल होते हैं जिसके अंदर इंसान सुनता है एक उदास लेकिन दूर की किसी समंदर की आवाज़, यानी ये जो समंदर की जो समंदर की जो 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 आवाज़ होती है, और इंसान उस दर्द भरी आवाज़ को सुनता है उन्हीं नज़मों के थ्रू, यानी उस शायर जो होता है, जो उसके अंदर जज्बात होते हैं, एहसासात होते हैं, वो हम सिर्फ उनकी नज़मों से ही सुन सकते हैं, हाँ? तो जिस तरह वो शैल समंदर से काफ़ी दूर होकर उसकी कहानी को बयां करता है, इसी तरह जो रवैया हो सकता है शायर का, कभी कभार वो हमें कंफ्यूज भी कर सकता है। बेहतर है कि हम उसके इस चीज़ को कहाँ से समझें, ना कि उसके बालों से, ना कि उसके जुराबों से, ना कि उसकी आवाज़ से, और ना कि उसके आसपास के जो माहौल से, बल्कि हम उसकी जो दर्द भरी जो कहानी है, उदास जो उसकी शायरी शायरी में ही सुने, उसकी जो असली जो करेक्टर जो शायर का होता है, जो उसकी असली दर्द भरी जो कहानी होती है या आवाज़ होती है, या जो उसकी दिल की बात होती है, या जो उसका असली चेहरा होता है, वो हम सिर्फ उसकी पोइम्स के थ्रू ही हमें पता चल सकता है। तो शायर की जो तख्लीक़ात हैं, उनको उनकी हालत ज़िंदगी या शख्सियत, उसके हवाले से कभी कभार हमको क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है पढ़ने वाला, तो गलत अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। तो इसलिए हमें सिर्फ उनकी नज़मों की बुनियाद पर उसके बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं, उनकी नज़मों की बुनियाद पर अंदाज़ा नहीं कर सकते। तो ये नज़म एक ऐसे वहम को पेश करती है जो कि पढ़ने वाले के दिलों में पैदा होता है जब वो शायर की तख्लीक़ात को उनके हालात ज़िंदगी या शख्सियत के हवाले से पढ़ते हैं। ठीक, तो किसी चीज़ को हम दूसरी चीज़ के हवाले परखना एक गलती है। तो सिर्फ लोग बाहरी दिखलावे से हमें उसके बारे में हमें कोई वहम नहीं पालना चाहिए, खासकर शायरों के बारे में। हो सकता है कि वो देखने में भद्दे हों, अनोखे तरीके से बात करते हों, लेकिन उनकी नज़में अजीम तख्लीक़ात हो सकती हैं। ठीक है। तो इस नज़म में शायर यही चीज़ हमसे कहता है कि हमें, तो जो शायर होते हैं उनको हम उनकी तख्लीक़ात या उनकी जो पर्सनालिटीज़ हैं, तो द पोइम जो पोइट्स यहाँ पे खासकर जो कन्फ्यूजन उसके जहन में पैदा होता है या रीडर्स के जहन में पैदा होता है, तो शायरों के हवाले से, पर्सनालिटीज़ के हवाले से, तो वो सिर्फ बाहरी दिखलावे से ही हम उसका पूरी तरह से अंदाज़ा नहीं कर सकते। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमें मद्देनज़र रखकर किसी के बारे में कोई खुशफहमी या गलतफहमी पैदा करनी चाहिए। ठीक, आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।